لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا سلام عليكم لا تخشوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. وكما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: يتبعثروا بالظلم والرسول ويظلم يرام تبدو. ایک جملہ ہے لیکن یہ حدیث ہے اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، بہت ہی مبارک الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام میں سے اس چیز کا چھوڑ دینا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسے کام میں انسان کو دخل نہیں دینا چاہیے جس کام میں ہمارا رات کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تھوڑا سا جملہ ہے لیکن بہت ہی معنی ہے اور بہت ہی پیاری عبادت ہے جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کے ساتھ، کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی گھڑی ہے، کسی شادی کو دی گئی تو یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کہاں ملے گی. آپ مختصر ان سے جواب دیتے ہیں کہ تو وطن کی کسی نے ہدیہ دیا ہے. پھر پلٹ کر کے وہ سوال پوچھتا ہے کہ کس نے دیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ساتھی نے دیا ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ ساتھی رہتا کہاں ہے، ہندوستان میں کہ ہندوستان سے باہر، تو آپ کہتے ہیں وہ باہر نہیں رہتا ہے. اگلا سوال وہ نام دیتا ہے کہ کہاں رہتا ہے، قطر، مسقط، عمان، بحرین، دبئی، سعودی. تو آپ پھر کہتے ہیں تھوڑا جھنڈا کر کے کہ نہیں سعودی رہتا ہے. پھر وہ اگلا سوال کر لیتا ہے آپ سے کہ سعودی میں کام کیا رہتا ہے اور کتنا کماتا ہوگا مہینے، اس کی سیلری کتنی ہے. تو آخر میں ہم اور آپ کھلا کر کے یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ اس میں دخل مت کیجیے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے بہت مبارک الفاظ. ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل کسی کو نظر آتا ہے، وہ پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ آپ کو ملا کہاں سے. وہ بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ مولوی ہونے کا مطلب یہ سروس ہو سکتے نہیں ہے، کسی نے دیا ہوگا، کیونکہ
عوام کا خدا دوسرا ہے، عوام کا اللہ دوسرا ہے، ہم مولویوں کا اللہ بہت غریب اور فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک ساتھی نے تو پسند دیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ سے فوراً آتا ہے کہ وہ ساتھی کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک درسی ساتھی تھا، اس نے بھیجا ہے۔ اچھا وہ رہتا کہاں ہے؟ وہ کھلا جگہ رہتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ کھلا جگہ ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے؟ اب جو ہمیں بھی نہیں پتا ہے، جب ہم سے اس چیز کا سوال کیا جائے گا اور اسے کھول پھریز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقین مانیے کہ چاہے ہم ہوں اور چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جھلا کر کے یہی کہنے پہ مجبور ہوگا کہ بھیا آپ اس چیز میں کیوں دخل دے رہے ہیں جس چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ بھی اسے فون کر کے ہدیہ منگانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں کیا؟ آپ بھی کچھ اس سے چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی مل جائے کیا؟ آدمی یہی جملہ کر کے کہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا سا جملہ دیکھیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اسلام کی انسان کی یہ اچھائی ہے اور اس کی اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں وہ دخل دینے کی کبھی کوشش نہ کیا کرے۔ ایسے وقت میں آدمی جب زیادہ دخل دیتا ہے تو کبھی کبھی اس کی توہین ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سامنے والا اسے قاعدے سے پھٹکارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی قاعدے سے اسے گھیر میں لے لیا جاتا ہے، پھر آدمی بعد میں سامنے والے کو برا بھلا کہتا ہے۔ سامنے والے کو نہ کہہ کر کے اپنے کو کہنا چاہیے کہ ہم نے ایسے کام میں دخل کیوں دیا جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک عام مزاج ہم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگ سامنے والا اگر کوئی مختصر کا جواب دے کر کے خاموش ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی تہہ کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو کھول پھریز کر کے اس کی ہندی کی چندی کر دیا جائے اور اندر تک پہنچ جایا جائے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور کس نے اس کو ہدیہ بھیجا ہے اور اس کی پگار کتنی ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، وہ رہتا کہاں پہ ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، ان سے تعلقات کیسے ہیں، ان کو مانتا کتنا ہے، ان کا خیال کتنا کرتا ہے، ہر مہینے ہدیہ کتنا بھیجتا ہے۔ ایک لاکھ بنا یہ سوال کا سلسلہ انسان کو مجبور کرتا ہے اس جملے کے کہنے پر جو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے ایک عالم نے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دوستوں کی محفل جمی ہوئی تھی، اتنے میں ہمارے بغل میں ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، اس کے فون پہ گھنٹی بجی، اس نے جیسے ہی ریسیو کیا سامنے سے آواز آئی کہ تم کہاں ہو؟ اس نے کہا کہ ہم کئی دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صاحب بغل میں آواز سنائی دے رہی تھی، کبھی کبھی اسپیکر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ بغل والے کو بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور سامنے والے کی آواز کس کی ہے، مرد کی ہے یا عورت کی ہے۔ اب لگتا ہے اس کی بیوی نے فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی گدھے تم ابھی تک ہو کہاں؟ تو اس نے کہا میں دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب اس نے وعدہ کیا تھا اپنی اہلیہ سے ڈی ایم صاحبہ سے کہ ہم مغرب بعد کہیں چلیں گے اور مغرب بعد کہیں جانے کا وعدہ تھا اور دوستوں کے درمیان بیٹھے رہ گئے اور وہ وعدہ بھول گئے۔ تو اس نے کہا آپ کیوں ایسی بیوقوفی کرتے ہیں، آپ ایک نمبر کے گدھے دکھتے ہیں۔ اب اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، کیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ حفاظت میں تمہیں رکھے، خیریت سے رہو، ایسا بات ملتے ہیں ایسا بات چلتے ہیں۔ اس نے پھر 2-4 جملے کر دیے، اس نے پھر ٹالنے کی کوشش کی۔ حضرت لکھتے ہیں مولانا کہ میں نے سوچا کہ ابھی اس کا فون کٹے گا اور ایک بوال کھڑا ہوگا، بغل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کا جیسے ہی فون کٹا چہرے کا رنگ بیچارے کا تو اتر گیا۔ اب مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس طرح کا فون آ جائے اور اسے دھمکی ملنے لگے اور ایسے جملے اس کے لیے کہے جانے لگے تو ظاہر ہے اس کے چہرے کا رنگ تو بدل ہی جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب فون کے کٹنے کے بعد یہی سلسلہ شروع ہوگا، فون کس کا تھا، کس نے کیا تھا، آپ سے کیا کہہ رہا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، اس طرح کا سوال جب شروع ہوگا تو بیچارے کا حسر کیا ہوگا۔ لیکن اللہ خیر اللہ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کہ کس کا فون تھا اور کس نے کیا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کہہ رہی تھی کہ کہہ رہے تھے، کسی نے کوئی اس سے سوال نہیں کیا۔ اگر لوگ کہہ دیتے تو بیچارہ وہ ایک مصیبت میں پڑ جاتا۔ یہی میں لوگوں نے عمل کیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یا ہم اور آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کی مزاج پرسے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت نہیں صحیح ہے، ہم پہنچے، ہم نے اس سے پوچھا خیر خیریت، ہم نے اس سے
पूछा तबीयत कैसी है, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसने कहा पहले से आराम है, कोई तजवीज़ की बात नहीं है, रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर साहब ने बताया रिपोर्ट सब नॉर्मल है, हार्ट भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मामूली सी बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। अब वो जवाब दे करके खामोश होना चाहता है। अब हम क्या कहते हैं उससे, बीमारी कैसी है, किस टाइप की है, जरा दवा आपकी दो के देखे तो। अब हमें ABCD भी नहीं आती है, लेकिन दवा देखने के लिए हम बेताब रहते हैं और दवा तो देख करके झूठ मूठ उससे पढ़ रहे होते हैं। अब पता नहीं होता है कि इसका स्वास्थ्य क्या है, मालूम नहीं होता है कि इसमें दूसरी दवा मिलाई किस तरह से गई है, दूसरी दवा एक दवा के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, किसी दवा में नुकसान से असरात होते हैं, उसको खत्म करने के लिए कभी कभी एक दवा साथ में और लगा दी जाती है। अब हमें पता नहीं है, लेकिन अब हम उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं कि तो आपको आपकी तबीयत अब कैसी है और बीमारी कैसी है, कोई खास बीमारी नहीं, तो फिर आपको परेशानी काहे की है। अब वो बेचारा बताना नहीं चाहता है, हम उससे उछल रहे हैं, हम उससे कुरेद रहे हैं, हम उससे परेशान कर रहे हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ये नहीं है तबीयत नहीं पूछ सकता है, खैरियत नहीं पूछ सकता है, मिजाज नहीं पूछ सकता है, यकीनन पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी तह में हम न उतरे। जब वो जवाब नहीं देना चाह रहा है, आगे वो बतलाना नहीं चाह रहा है, आगे वो बीमारी को खोलना नहीं चाह रहा है, अब वो बेचारा खुल करके कहे कि हमको बवासीर हो गई है, तब हम मुतमईन होंगे। वो बेचारा खुल करके कहे कि हमारे बैठने की जगह पे फोड़ा निकल आया है, तब हम मुतमईन होंगे। वो बेचारा खुल करके कहे कि हमारे सामने वाले हिस्से में कोई जख्म लग गया है, तब हम मुतमईन होंगे। अब वो बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम उसे परेशान करने की फिक्र में लगे, हम इतनी तह तक जाने की फिक्र में लगे रहते हैं कि वो सामने वाला जवाब नहीं देता है। ऐसे मौके पे यकीन जानिए, चाहे हम हो और चाहे आप हो, चाहे तीसरा कोई हो, वो सच हो करके, तंग हो करके और परेशान हो करके यही जुमला वो इस्तेमाल करेगा कि आप उस काम में दखल मत दीजिए, आप ऐसे चक्कर में मत पड़िए, आप ऐसी चीज के चक्कर में मत पड़िए जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। या मिसाल के तौर में हमारे बच्चे नंबरात जब हासिल करते हैं इम्तिहानात में, तो बहुत से लोग भरे मजमा में पूछ लेते हैं कि आपका नंबर कैसा था, आप पोजीशन लाए कि नहीं लाए। ओहो, आप तो पोजीशन नहीं लाए, आप तो 33 से पास हुए हैं, आप तो बहुत जोड़ मालूम होते हैं। अब भरे मजमा में इस तरह के जुमले अगर चलेंगे तो जाहिर है वो बेचारा झुल्लाएगा और उसे कोई नसीहत मिलने वाली नहीं है। वो सिवाय इसके कि आपसे बिगड़ जाएगा, हमारे करीब कभी आने की कोशिश नहीं करेगा, हमारे बारे में तासुर पैदा कर लेगा कि एक नंबर का कमीना इंसान है, दूसरे को सिर्फ बेइज्जत करना जानता है, दूसरे के ऊपर सिर्फ तनकीद करना जानता है, कायदे की बात कोई नहीं करना जानता। अगर हमें इतना ही लगन है, हमें इतनी ही चाहत है, हमें इतनी ही हमदर्दी है, हम उसे किनारे ले जाए और फिर उससे बात करें। अगर उसका नंबर कम है, हम उसे हौसला दिलाएं, हम उसे तरीका बताएं, हम उसे समझाने की कोशिश करें, हम उसे बताने की कोशिश करें कि कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे गिर करके आगे बढ़े थे। एक बार तो हम भी एक किताब में फेल हो गए थे, एक बार तो हमने भी एक किताब का पूरी रात जाग करके तकरार किया था और नतीजा इम्तिहान में ये निकला कि उसी किताब में इम्तिहान में पूरी पढ़ाई के दरमियान 10 साल की पूरी पढ़ाई के रिकॉर्ड के दरमियान उसी किताब में सबसे कम नंबर आया। जिस किताब में पूरी रात जाग करके तकरार किया गया था और दूसरे से टकराव लिया गया था और चैलेंज किया गया था कि आज देखना है पूरी रात कौन जागता है और पूरी रात कौन पढ़ता है। इस चैलेंज को कबूल करके पूरी रात पढ़ करके हम फिर भी उसमें नंबर कम लाए थे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लाइफ में ऐसा कभी हो जाता है, कभी कभी इंसान गिर जाया करता है, कभी कभी तेज रफ्तार घोड़ा भी ठोकरे खा करके उलट जाया करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम उसे समझाना चाहते हैं तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें, हम इस तरह की बातें करें, हम उससे कहें हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे उठकर चले। अगर हमको हमदर्दी है, अगर हमको मोहब्बत है, अगर हम उसे कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं तो ये रवैया होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। वो भरे मजमे में आया है, उसके घर पे आप मौजूद हैं, उसके वालिद मोहतरम मौजूद है, 4 साथी आपके और बैठे हुए हैं, आप उससे सवाल पे सवाल डाले जा रहे
रहे हैं, आपका नंबर क्यों नहीं आया, आप जिसे क्यों लाए, इसका मतलब जोड़ मालूम होते हो, पढ़ नहीं पाते हो या पढ़ना नहीं चाहते हो, एक नंबर के कमीने हो, तुम तो अपने खानदान की रोटियां डुबो दोगे, वो नहीं डुबोने में होगा तब भी डुबोने में तैयार हो जाएगा। ये हमारा रवैया उसके साथ है सही है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हुस्न इस्लाम मर्दी तब को माना यानी कि जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप उसमें कोई इंटरफेयर मत कीजिए, आप उसमें कोई दखल मत दीजिए। यही आलिम साहब लिखते हैं कि एक मरतबा सऊदी के एक इलाके में मुझे जाना हुआ, वहाँ मेरा लेक्चर था, मगर ऐसा के बाद मुझे तकरीर करनी थी, मेरे दोनों बेटे भी साथ में चले गए थे, एक का नाम अब्दुल रहमान और दूसरे का नाम मोहम्मद इब्राहिम। मैंने अपने एक साथी से कहा जो कि नौजवान था, मैंने कहा जब तक मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, इनको ले जाओ कहीं टहला करके लेकर के आओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये गाड़ी में बैठने के बाद हो सकता है मेरे बच्चों से फालतू सवाल शुरू कर दे, हो सकता है मेरे बच्चों से लायानी सवाल शुरू कर दे। कुछ लोगों का मिजाज होता है फालतू दखल अंदाजी करते हैं। पहले मैंने हदीस पढ़ी नहीं थी, नहीं तो इस साहब को बड़ा अच्छा जवाब देता। एक जगह मैं बैठा हुआ था, बहुत छोटा सा, आज मुझे याद आया अभी अचानक से, मैं बैठा हुआ था, गया था डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, वहाँ एक दूसरे साहब मौजूद थे, उन्होंने इसी तरह का मुझसे सवाल शुरू कर दिया। तो आप क्या दूध कितना आता है, वालिद साहब आपके दूध कितना मंगाते हैं, तो आप लोग कितना पी जाते हैं, तो चाय कितने मरतबा बनती है, तो कितनी मरतबा आप लोग पीते हैं। यही फालतूगिरी है जो हम और आप करके किसी को जज कर रहे हैं, जिससे आपका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो कहते हैं मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी इंसान की इस्लाम की खूबी का हिस्सा ये है कि जिस चीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसके चक्कर में मत पड़े, उससे बिना वजह सोच प्रेस करने के चक्कर में न पड़े। मैंने उससे खूब हदीस रखाई और मैंने कहा कि ये नौजवान जब तुमसे सवाल करेगा तो तुम उसके सवाल का जवाब देने के बजाय ऐसे ही टालने की कोशिश करना। बच्चे को समझा दिया, बच्चा ठहरा बच्चा, जब तो गाड़ी में सवार हुआ तो उस नौजवान ने पहले सलाम कलाम के बाद उसे दुआ दी, जैसा कि अरबों का मिजाज है, बार बार वो दुआ देते हैं। एक दुआ देंगे, अगर आप दुआ लौटाते हैं तो दूसरी दुआ देंगे, आप तीसरी दुआ देते हैं तो चौथी दुआ देंगे। उनके यहाँ सलाम, उनके यहाँ दुआएं जुमले इतने आम है कि हमारे यहाँ तो मौलाना लोग भी ऐसे दुआ नहीं देते, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे दुआ नहीं देते। जो उनका आम मिजाज है अस्सलाम वालेकुम हैया कल्ला अल्लाह योती कलाफिया अल्लाह आफा, दुनिया भर के अल्फाज इस्तेमाल करते चले जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ, बड़ी रवानी के साथ वो इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ऐसे ही उस नौजवान ने पहले बच्चों को दुआइया जुमला दिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बच्चा भी अरब का बच्चा, उसने पलट करके कहा अल्लाह आपको भी खुश रखे। फिर उसने ये पूछ लिया कि जरा ये बताइए कि आपके वालिद मोहतरम का ऐसा बात कोई लेक्चर है क्या, ऐसा बात कोई बयान है क्या। अब बच्चे ने वो जुमला दोहराने की कोशिश की और हदीस के अल्फाज वो भूल गया, कहने लगा जिससे आपका ताल्लुक नहीं है बिना वजह उसके चक्कर में मत पड़िए। अब ये बेचारा थोड़ा सा हकलाए और थोड़ा सा घबराए, उसके बाद कहने लगे नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा बात उनकी कोई तकरीर है, ऐसा बात उनका कोई बयान है, ऐसा बात उनका कोई लेक्चर है तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। अब बच्चे ने समझा कि ये बड़ा प्यारा बन रहा है, बच्चे ने समझा कि ये ड्राइवर होशियारी दिखा रहा है। बच्चे ने कहा मैंने आपसे कह दिया ना जिससे आपका ताल्लुक नहीं उसको टाक मत लौटाइए, क्यों आप चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर जब वो प्रोग्राम से लौट करके आए तो अपने वालिद को पूरा किस्सा बताया कि उन्होंने ऐसे पूछा, मैंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया। तो वालिद मोहतरम ने उनको समझाया बेटा मतलब ये नहीं था, मतलब ये है कि अगर आदमी फालतू चीजों में आपको फंसाना चाहता है और फालतू बातों में आपको समझाना चाहता है तो आप उसे इस तरह से टालने की कोशिश कीजिए। हमारी लाइफ में ऐसे सुबेली लोग, ऐसे फालतू लोग मजलिसों में ऐसे नवाजों में कितने मिल जाते हैं जो हमारा भेजा खाने के चक्कर में रहते हैं, हमारा दिमाग पकाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे ही सवालात वो उठाते रहते हैं कि जिस सवाल के जवाब की कोई जरूरत नहीं होती। अब ऐसे सुबेली लोगों से निपटा कैसे जाए, ऐसे सुबेली लोगों से कैसे आप बाहर आए। बहुत से लोग इस तरह से मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि कोई ये जुमला सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के इस्लाम की खूबी का हिस्सा ये है कि जो चीज जिस चीज से उसका ताल्लुक नहीं है उसके चक्कर में बिना वजह न पड़ा करे। जरूरी नहीं कि जो सुन ले वो अमल करे, अक्सर यही सही मिलते हैं जो अमल नहीं करते हैं, जो बिना वजह के सवाल करके हमें और आपको तंग करते रहते हैं। ऐसे दुबैलियों से निपटा कैसे जाए। हम बैठते हैं, हमारा मोबाइल साइड में रखा हुआ है, हमने जेब से निकाल करके रख दिया। अब बहुत से लोगों की आदत होती है फौरन उठा
लेते हैं, कुछ चालू कर देते हैं, अब उसे खोलने की कोशिश करते हैं, गैलरी में जाने की कोशिश करते हैं, फेसबुक पे चक्कर में पड़ते हैं, व्हाट्सएप में देखने के चक्कर में पड़ते हैं। भाई किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों दखल दिए जा रहे हैं, क्यों अंदर तक घुसने की कोशिश की जा रही है? अपना तो गैलरी में भी ताक लगा हुआ है, अपना तो व्हाट्सएप में भी ताक लगा हुआ है, अपना तो फेसबुक में भी ताक लगा हुआ है, और अगर हमारे मोबाइल में भी ताक लगा है, उसे तोड़ने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे ही एक रात बैठे हुए थे, दूसरे साहब का मोबाइल उठाया और उठा करके ऐसे ही जैसे देखा, फौरन उन्होंने वापस रख दिया। उसके बाद उनके साथी ने कहा, आपके मोबाइल में क्या बात थी कि सामने वाले ने उठा करके फौरन रख दिया और आप लगे मुस्कुराने? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन पे लिख रखा है, अबे वो तुम है जिस चीज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके चक्कर में मत पड़ा करो। तो उन्होंने उठा करके जैसे ही पड़ा, चिटपिटा करके उन्होंने वापस लौटा दिया और रख दिया। तो ऐसे लोगों से निपटने का तरीका यही है, मौजू बदल दिया जाए, गुफ्तगू बदल दिया जाए, उस वक्त में किसी और पॉइंट में बात करने शुरू कर दिया जाए, ताकि वो आपको दर्द न कर सके, वो हमें और आपको परेशान न कर सके। न मालूम कितने लोग ऐसे मिलते हैं, हमारी बाइक पे बैठे, ये तो खटाना मालूम होगी, ये तो चलना नहीं कह रही है, ये तो गुरु गुरु कर रही है। भैया हमारे पास जो है वही ना लेके चलेंगे, कोई साइकिल से जा रहा है, अब चलाओ, हमारे साइकिल तो है, कहाँ साइकिलियत है? भाई अल्लाह ने उसको जो दे रखा है उसी से चलेगा। आपसे नहीं तकलीफ तो फॉर्च्यूनर खरीद के उनको दे दीजिए, आपसे नहीं परेशानी है तो एक पल्सर खरीद के दे दीजिए। ये फालतू सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मिसाल के तौर पर कोई औरत किसी औरत के साथ बैठती है, अब उसको जरूरत पड़ गई लिपस्टिक की, अब उसको जरूरत पड़ गई पाउडर की, अब बंद वाली औरत का पर्स खोल दिया गया, उससे पूछा भी नहीं गया अब उसमें क्या सामान है, कितने पैसे हैं, क्या खुफिया मालूमात है, क्या राम की चीजें हैं, बिना वजह उसमें दखल दे दिया गया। अब वो बेचारा या बेचारी परेशान हो जाती है। ऐसे लोगों से जब भी सामना पड़े तो याद रखें, किसी भी दोस्त को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और किसी भी शख्स को बिना वजह दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। हर तक इनका कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी हाथ से छोड़ने न पाए और कोई भी दुश्मन बनने न पाए। कमजोर से कमजोर इंसान हो फिर भी उससे बिना वजह दुश्मनी नहीं बोल लेनी चाहिए। मजबूरी से दुश्मनी की जाती है, एकदम मजबूर होकर के हाथ पैर चलाए जाते हैं। जब तक ये तरीका रहे कि आप उसे डील कर सकते हैं तब तक डील करने की कोशिश कीजिए। जैसे आज के दौर में कोई हम लोगों से मिलता है तो ये सवाल कर लेता है आपकी सैलरी कितनी है, आपकी तनख्वाह कितनी है। अब उनको टालने का तरीका यही है कि आप मुस्कुरा करके कहिए और हम मुस्कुरा करके कहें क्यों, आप क्यों पूछते हैं, कोई दूसरा आपने देख लिया है क्या, कहीं और से हमारी ड्यूटी लगवाएंगे क्या? लगता है कोई ऐसी जगह आपको मिल गई है जहाँ हमें 25-30 हजार महीने का मिलने वाला है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। वो कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए नहीं ऐसा लगता है हमको जुगाड़ बहुत है कुछ, आप भी हमारा जुगाड़ करने वाले। वो कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए तनख्वाह में तो सबकी हालत पतली है, पेट्रोल का दाम कहाँ जा रहा है, डीजल का दाम कहाँ जा रहा है। अब वो कहेगा डीजल पेट्रोल से क्या लेना देना। आप कहिए डीजल पेट्रोल ही पे तो मामला डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट का मामला उसी से आगे बढ़ता है, उसी से महंगाई आगे बढ़ती है, चीजें इधर से उधर जाती है, उनका किराया बढ़ता है। जब किराया बढ़ेगा तो चीज खुद ब खुद गिरा और महंगी हो जाएगी। तो तनख्वाह के मामले में सबकी हालत पतली है, सबका खर्चा परेशान किए हुए है, हमारी भी हालत पतली होती चली जा रही है। भाई वो कहेगा कि पेट्रोल के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं, तो आप कह दीजिए कि भैया यही पेट्रोल और डीजल है जिसने कितने मुल्कों में जंगे पापा कर दी है, जिसने इराक को तहस नहस कर दिया, जिसने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया, जिसने लीबिया को तहस नहस कर दिया, जिसने शाम के इलाके को परेशान करके रख दिया है। यही पेट्रोल और डीजल का खेल है। अब वो थोड़ी देर में अपना किया हुआ सवाल भूल जाएगा और उसके जहन से निकल चुका होगा कि हमने क्या पूछा था, उसके जहन से निकल चुका होगा कि हमने क्या सवाल किया था। किस तरीके से उसको टाला जा सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस्लामी मर्जी तरको हो माला यानी इस्लाम इंसान के इस्लाम की खूबी का हिस्सा ये है कि जिससे कोई चीज ताल्लुक नहीं रखती है, जो आपके मतलब की नहीं है, बिना वजह उसके चक्कर में मत पड़िए, बिना वजह उसे पूरे मत कीजिए। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला साहब शेखुल हदीस एक मरतबा घर जा रहे थे, एक रिक्शे में बैठे, रिक्शा वाला खड़ा 1.25 एकदम एक नंबर का 1.25 था। उसने आगे रिक्शा बढ़ाया तो सलाम कलाम के बाद कुछ सवाल शुरू हुआ। उसने पूछा आप कहाँ पढ़ते पढ़ाते और क्या करते हैं। मुफ्ती साहब ने जब अपना तारुफ कराया तो उसने कहा अच्छा आप देवबंदी हैं और मैंने सुना है कि देवबंदी लोग काफिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। मुफ्ती साहब ने यही हदीस पढ़ी और फरमाया कि अल्लाह मदनी सल्लल्लाहु
علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی کا حصہ یہ ہے کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس چکر میں نہ پڑا کرے۔ جب آپ نے یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اسے سنائی تو خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ آپ چاہے جلتے ہو، آپ کے درود پڑھنے سے ذرا سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ لوگ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس ایک حدیث کی برکت سے اس کے اوپر ایک راز بھی کھل گیا اور مفتی صاحب نے سوال میں سوال کا جواب دے کر کے مسئلے کو ختم بھی کر دیا۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، یہی طرز ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب اس طرح کی لوگ باتیں سنتے ہیں، جو اہل عقل ہے، جو اہل دانش ہے، جو سمجھدار ہے، وہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوال کے جواب کو سوال نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے ہیں، سوال میں سوال کر کے باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جاہلوں سے، وہ بیوقوفوں سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے الجھنے کے بجائے کچھ بھی انداز سے سلجھایا جائے کہ کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور فالتو باتوں سے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔